Hello, good morning, students. Today we are moving further with the second chapter of OC, and the name of the chapter is Business Services Part 1, and we are doing the third part that is about the insurance sector. Today, first of all, we will learn about the privatization of insurance. Insurance was initiated by the private sector in India. So, first of all, the insurance company or the concept of insurance was initiated, means it was invented by the private sector company. So, before learning towards the insurance company and the privatization of the insurance, it should be very clear in your mind that what actually is private sector and what actually is public sector. So, private sector means the sector where the interference of the government is not there. But in the public sector, see, there are some rules and regulations for the bifurcation of private sector and for the public sector. But as I think in the accounts you people had, I don't know whether you people had learned about share capital or not, but have you people ever heard about shares? सब लोग कभी कभी बात करते हैं दैट पर्सन इज डीलिंग इन द शेयर मार्केट एंड ऑल दैट. व्हाट इज दैट शेयर? सो that will be a part of your accounts. And for the understanding of public sector and the private sector, मैं आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. शेयर मीन्स टोटल कैपिटल, जो कंपनी की टोटल कैपिटल है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो दैट इज ट्रीटेड एज द शेयर्स. फाइन. बट पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के रूल्स क्या है कि अगर कोई भी कंपनी के शेयर्स मोर देन 51% ऑफ द शेयर्स गवर्नमेंट के हाथ में है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज द पब्लिक सेक्टर. वाई? बिकॉज मोर देन 51% ऑफ द शेयर्स आर होल्ड बाय द गवर्नमेंट, एंड इफ लेस देन 51% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय द private sector, means not held by the government, then rest of the sectors are treated as the private sector. So insurance company जो है वो first concept of insurance was initiated by the private sector in India. And when it was initiated, when the British, as Indian was a British colony, many foreign insurance companies started insurance business in India as they were blamed for practicing the illegitimate business. सो इंडिया में जब ब्रिटिश कॉलोनी थी एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स, तब फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज जो थे दे हैड स्टार्टेड द कंसेप्ट ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया, एंड द फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज वर ब्लेम्ड इन इंडिया फॉर प्रैक्टिसिंग द इलेजिटिमेट बिजनेस. मीन्स दे वर डूइंग द बिजनेस विच वॉज टोटली इलीगल प्रैक्टिसेस इन द 19th January 1956 थ्रू एन ऑर्डिनेंस. सो उसका प्रैक्टिस जो है वो कब से शुरू हुआ? फ्रॉम 19th January 1956. एंड व्हाट इज़ एन ऑर्डिनेंस? ऑर्डिनेंस मीन्स वन टाइप ऑफ अ टेम्पररी लॉ which is passed by the Supreme Court, and it is passed by both the houses of the Parliament, that is Rajya Sabha and Lok Sabha. उसके बाद जब प्रेसिडेंट उसके और प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर साइन करते हैं दैन ओनली इट विल बी ट्रीटेड एज एन ऑर्डिनेंस. एंड ऑर्डिनेंस इज़ ए टेम्पररी लॉ. सो जब इंश्योरेंस सेक्टर इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ, एट दैट टाइम इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट वाज नॉट अप्लीकेबल. बट अब वैसे कोई भी नया कंसेप्ट हम लोग बिजनेस में ला कर आता है, हम लोग अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं. सो इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल दैट वी विल गेट a law for that particular product or for that particular business. उसके पहले आपको बहुत सालों की प्रैक्टिस करनी पड़ती है. with the success in that practice you will be given the opportunity to frame the rules and regulations, and then it will be treated as an ordinance. Ordinance is a temporary law, it is not a permanent law. Ordinance means a temporary law. और ordinance कब बनता है? जब ऑर्डिनेंस फ्रेम हो जाता है, उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम हो जाता है, उसके बाद उसमें
इट इज़ पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज़ लोकसभा एंड राज्यसभा, और उसके दोनों में से पास होकर जब प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट उसमें साइन करता है, इट विल बी ट्रीटेड एज एन ऑर्डिनेंस. So when the insurance sector was initiated in India, और first of all first time जब उसका establishment इंडिया में हुआ, it was an ordinance. Life insurance business was nationalized and the Life Insurance Corporation of India was set up. So ordinance के बाद जब उसका nationalization हुआ, मीन्स लीगली उसकी प्रोसीजर्स शुरू हो गई, उसके बाद the name was given Life Insurance Corporation of India. The monopoly of Life Insurance Corporation was also established. Monopoly means only the owner, single person is the owner, और उस only the single person is the owner, और उसके बाद जो ओनर होता है he will only have his monopoly in the market. उसके अलावा ऐसा बिजनेस कोई नहीं करता है. General insurance was introduced by the Britishers in India. Periodically, controls were imposed on the general insurance as well as it had continued after the independence. So पहला जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश हुआ था, और उसका जो पावर था वो किसने एस्टेब्लिश किया था? इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया बाय द ब्रिटिशर्स एंड विद द हेल्प ऑफ, ऐसे ही टाइम जब जाता गया, पीरियडिकल कंट्रोल्स वर इम्पोज्ड ऑन द जनरल इंश्योरेंस एज वेल एज इट हैज़ कंटिन्यूड आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑन 1st January 1973. द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस वॉज नेशनलाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1952. और उसके बाद इट वॉज फर्स्ट ऑल्सो दिस एक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज ऑल्सो एन ऑर्डिनेंस, और उसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1952 में. बट उसको परमिशन कब मिली थी? एक्ट में कब कन्वर्ट हुआ? आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑन 1st January 1973. टू एनालाइज एंड अप्रेज द वर्किंग ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर, अ कमिटी वॉज अपॉइंटेड recommended to join the foreign insurance company with the foreign counterparts. Insurance Regulatory and Development Authority IRDA was set up in 1999 to support it. But obviously कोई भी सेक्टर या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी या कुछ भी एस्टेब्लिश होता है, उसको हैंडल करने के लिए कुछ तो चाहिए. तो पहले तो इंश्योरेंस सेक्टर के लिए उन लोगों ने एक कमेटी बनाई थी, और कमेटी में कुछ मेंबर्स को ज्वाइन किया, और मेंबर्स जो थे दे वर अ पार्ट ऑफ द फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज एंड फॉरेन काउंटर पार्ट्स. मतलब जो लोगों को फॉरेन की लैंग्वेज आती है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है, ऐसे ही मेंबर को उन लोगों ने जो मीटिंग ज्वाइन करने की परमिशन दी थी. और उसके बाद इन द ईयर ऑफ 1999 इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी वॉज सेट अप टू सपोर्ट दिस. मीन्स लीगली इंडिया में जो इंश्योरेंस कंपनी का वर्किंग जो था, उसको सपोर्ट करने के लिए एक सिस्टम सेटअप की थी, दैट वाज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999, दैट इज IRDA. Insurance Regulatory and Development Authority. This is a supreme autonomous and a legal institution which manages the regulatory and development activities in the field of insurance. So this is a supreme means at the top authority, and it is a legal institution which have to manage all the work related with the insurance company. IRDA Act of 1999 has opened the doors of insurance sector to the private insurance companies and the foreign insurance companies to the extent of 26%, which has raised to 49%. सो उसकी भी कुछ लिमिट्स दी गई थी कि IRDA एक्ट अप्लीकेबल तो हो गया था. उसके बाद आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इट हैज़ ओपन द डोर्स फॉर द डूइंग द बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस इन द बोथ प्राइवेट सेक्टर, दैट इज़ इन इंडिया. पब्लिक में तो कोई था ही नहीं तब तक, प्राइवेट सेक्टर में इंडिया में था. और उसके बाद फॉरेन कंपनीज़ को भी उन लोगों ने अपॉर्चुनिटी दी थी टू 49% की 2015. और उसकी जो लिमिट थी 26% की, मतलब 26% तक वो लोग इन्वेस्ट कर सकते थे फॉरेन कंपनीज, और दैट वाज रेज टू 49% in 2015. So foreign insurance companies can directly invest in the Indian insurance companies up to 49%. सो फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज़ को कितनी लिमिट दी गई थी कि वो लोग इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं अप टू द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 49%. 49% बट किसके, और 26%, तो 26% जो है वो किसके, उसका टोटल शेयर कैपिटल जो था उसका 49% दे कैन इन्वेस्ट इन द इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज़.
The main objectives of Insurance Regulatory and Development Authority are policyholders get more choice. If the person has to invest his money, उसको क्या चाहिए, उसको कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज चाहिए. हम लोग भी बाज़ार में जाते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं, हमें कुछ ज़्यादा चॉइस मिले तो अच्छा है. सेम वे अगर हम लोग हमारे पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, वी शुड हैव मोर चॉइसेस कहाँ पर हमारे पैसे जो है वो सेफ है. Promote healthy competition among the various insurance companies which can improve the services of the lower premium. इंश्योरेंस कंपनीज की भी कंपटीशन हो गई थी तो उसमें भी कुछ तो चाहिए ना, और वो लोग अपनी सर्विस भी इम्प्रूव कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ लोअर रेट्स ऑफ प्रीमियम. अगर हम इंश्योरेंस लेते हैं, वी आर सपोज टू पे द प्रीमियम टू द इंश्योरेंस कंपनी, तो हम लोग ये सोचेंगे कि अगर हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है विद द लेसर अमाउंट ऑफ प्रीमियम, तो हम लोग वहाँ पर ही इन्वेस्ट करेंगे. टू मोबिलाइज मोर रिसोर्सेज फॉर द इकोनॉमी, जहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ हो रहा है. एंड टू ब्रिंग सेल्फ डिसिप्लिन अमंग द इंश्योरेंस कंपनीज. और इंश्योरेंस कंपनीज के बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो भी प्रॉब्लम्स अब सॉल्व हो जाएगी अगर सब लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे. टू क्रिएट अ मैकेनिज्म फॉर द कंप्लेंट एंड रिड्रेसल. सो इंश्योरेंस कंपनी ऐसा भी ध्यान रखती है कि अगर हम लोग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो हम लोग ऐसा भी प्लेटफॉर्म क्रिएट करें कि जहाँ पर कस्टमर्स अगर सेटिस्फाइड नहीं हैं, दे आर सपोज टू पब्लिश देयर कंप्लेन ओवर हियर. ओके, you are supposed to copy this objectives of insurance company in your fare book. Thank you.